Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, that's good. And you can also see the slides. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. that's good. Okay, let's start our today's topic. So, any student can tell me what is the topic for today? Interior Muscles of antebrachial muscles. Beta one by one. muscles of forearm, flexor compartment. Yes. And we also call these muscles as, Interior antebrachial muscles. yes, interior antebrachial muscles. So, as you know, before doing the attachments of the muscles, you should know about the bones of the forearm and the hands. Can you name the bones of the forearm? Yes, ma'am. Radius and ulna. And radius is the medial bone or the lateral bone? Lateral. Lateral. Yes. And name the medial bone? Ulna. 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 Yes, right. And this diagram shows the bony features of the radius and ulna bones. Now the next slide shows the bones of the hand. In the purple, which bones are present? Carpals. And how many carpal bones are present? 8 carpals. 8 in 2 rows. Yes, exactly. And they are present in which rows? 2 rows. Proximal and distal. Proximal and distal. Can somebody name the bones in the proximal row? Scaphoid lunate. Scaphoid, lunate, triquetrum, and pisiform. Yes, and pisiform. And pisiform is the medial bone or the lateral bone? Medial. Yes, it's present on the medial side, right. And name the bones in the distal row, beta. Trapezium, trapezoid, capitate, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. Hamate. And hamate. And hamate is present on the medial side, right? And distal to the carpal bones. कौन सी bones होती हैं? Metacarpal. Metacarpals. And how many metacarpals are present? 5. Five. One hand, right? So total body में कितने carpals? 10. 10. हाँ, ये याद रखना कि एक हाथ में 5 हैं, लेकिन दोनों हाथों में मिला के 10 होते हैं. And proximal to the metacarpals, क्या चीज है? Phalanges. Proximal phalanges. Proximal phalanges. And how many proximal phalanges are present in one hand? 5. 5. Yes. And distal to the proximal phalanges? Medial phalanges. Middle Distal phalanges. And how many distal phalanges are Intermediate present? phalanges. 5. 5. Distal 5 बेटा intermediate phalanges कितनी होती हैं? 4 or 5? 4. 4. Don't confuse them. Distal phalange, intermediate phalanges आपकी 4 है. और किसमें absent होती है? Thumb. Thumb में. And distal to the intermediate phalanges? phalanges. Distal phalanges. और distal phalanges कितनी हैं? 5. 5. These are the names and numbers of the bones present in the hand. Next, we start with the interior antebrachial muscles. Now, you tell me, that as this is a Revian lecture, we divide the muscles in the anterior compartment in how many layers? 3 layers. Superficial. 2. Superficial, intermediate, deep. Yes, superficial, intermediate, and deep layer. And
Name the muscles present in the superficial layer. Pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, post base intermediate में. Yes. And beta, what do you understand by the term superficial muscles? Closer to epidermis. Yes. Closer to the epidermis. And deep muscles क्या होते हैं? Closer to bones. Yes, exactly. Closer to the bones. So they are 4 muscles in the superficial layer. These are pronator teres, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, and flexor carpi radialis. And in the intermediate layer, we have flexor digitorum superficialis, right? And in the deep layer, we have 3 muscles. कौन से हैं वो muscles 3? Flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, pronator quadratus. Exactly, pronator quadratus. बेटा flexor pollicis longus. Pollicis से इस टर्म से क्या आपको चीज समझ आती है? Thumb. ठीक है. So do remember this बेटा, जहां पे भी pollicis का word है वो thumb रहेगा, और जहां पे भी digitorum का word है वो किससे रिलेट होता है? Digits. Digits. ठीक है, वो digits रिलेटेड होता है. ये चीज याद रखना, ये बच्चे वाइवा में नहीं बता रहे थे. This is the diagram which is taken from your Kerlan. We start from the medial to lateral. Can you locate pronator teres muscle? Yes, ma'am. क्या है pronator teres muscle? जो straight है या जो oblique है? Obliquely. जो oblique है. From medial to lateral जो muscle जाता है बेटा वो pronator teres है. And next medial muscle is flexor carpi ulnaris. Right? Next to the flexor carpi ulnaris, which muscle is present? Palmaris longus. Palmaris longus muscle. Exactly. And next to the palmaris longus muscle, Flexor carpi radialis. radialis. exactly, flexor carpi radialis. These are the muscles present in the superficial layer from medial to lateral. So ये डायग्राम याद रखो, एग्जैक्ट इसी तरह आपको कैडेवर में और अपने स्पेसिमेंस में आपको नजर आएगी प्रोसेक्टेड स्पेसिमेंस में. Next we'll do the attachments and action and innervation of this muscle in detail now. So pronator teres muscle, it originated in 2 heads बेटे. जब आपसे ओरिजिन और इंसर्शन पूछा जाता है तो जो मसल्स 2 हेड्स में हैं वो आपको याद करने होते हैं और आपको वो पता होने चाहिए. आप वाइवा में ये चीजें नहीं बताते हैं. अटैचमेंट्स, मसल अटैचमेंट्स बेटा ये आपको आनी चाहिए. आपको आएंगी तो आप इसको आगे से एक्शंस बता सकते हैं. कोई बच्चा नहीं बताता अल्नर हेड क्या है, रेडियल हेड कहाँ है, कहाँ से आते हैं. प्रोनेटर टीरीज ओरिजिन बताया जाता है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस. ठीक है, उसका ओरिजिन है बेटा, लेकिन वो 2 हेड्स में आता है. रेडियल हेड फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है एंड अल्नर हेड फ्रॉम द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. अब मुझे ये चीज बताओ कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस को कुछ और भी कहते हैं? Common flexor origin. Yes, common flexor origin. So what do you understand by this term common flexor origin? मैम काफी फ्लेक्सर होते हैं. 5 टेंडन्स निकलेंगे फ्लेक्सर मसल्स के. Exactly. और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट आपका कौन सा कंपार्टमेंट है? इंटीरियर और पोस्टीरियर? इंटीरियर कंपार्टमेंट. इंटीरियर. तो बेटा जो आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं वो मोस्टली आपके कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आते हैं. ठीक है, जैसे आपने बताया कि 5 टेंडन्स निकलती हैं उसे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से. तो लेकिन इसके अलावा मसल्स की जो ओरिजिन है वो भी याद रखनी होती है. Right? Yes, ma'am. Now, the pronator teres originated from ulnar head from the coronide process of ulna. You can see in the diagram. Ulnar head बेटा जो है, जो short head है, वो coronide process of ulna से आ रहा है. Radial head from the medial epicondyle of humerus और
कॉमन फ्लेक्सर रीजन से आ रहा है. And from where it is inserted? It inserted on the middle of the lateral surface of radius. That's why this muscle is present in oblique fashion. From medial to lateral जाता है ये. Medial epicondyle of humerus और coronary process of ulna से originate करता है and lateral surface of radius पे जाके insert हो जाता है. And what are the actions of pronator teres muscle? Helps in pronation. Helps in pronation of what? Help in pronation of arm. Forearm. Exactly. तो ये पूरी टर्म बोलनी होती है. जब आपसे वाइवा में पूछा जाए तो बेटा ये पूरा बोलते हैं. Pronation of forearm, flexion of forearm, flexion of wrist, flexion of arm. ये पूरी टर्म यूज की जाती है. And it also assists in the flexion of forearm. And what is the nerve supply of this muscle? Median nerve. Medial nerve. So in the interior compartment, we have medial nerve and we have ulnar nerve. While in the posterior compartment, we have radial nerve. So don't confuse the innervation. In the interior compartment, we have median nerve and ulnar nerve. While in the posterior compartment, we have radial nerve. Radial nerve. And how can we test the pronator teres muscle? This is the testing of the pronator teres muscle. Can somebody explain me? कि आप कैसे करोगे अपना pronator teres muscle या आप किसी दूसरे का pronator teres muscle किस तरह टेस्ट कर सकते हो? उसके टेंडन को पाल्पेट करके. Exactly, उसके टेंडन को palpate करके. लेकिन क्या मूवमेंट करवाओगे आप? Pronation. Pronation करवाएंगे मैम. Pronation against resistance. Exactly, आप pronate करवाओगे arm from supine position against resistance, right? तब आपका ये मसल का जो टेंडन है बेटा वो प्रोमिनेंट हो जाता है इन द मीडियल मार्जिन ऑफ क्यूबिटल फोसा. जहां पे ये एरो लोकेट है ना, यहाँ पे आप मीडियल मार्जिन ऑफ क्यूबिटल फोसा पे अगर आप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फ्रॉम सुपाइन पोजीशन प्रोनेशन करवाते हो तो यहाँ पे आप मसल पे पेट कर सकते हो और ये मसल प्रोनेटर टीरीज होता है. नेक्स्ट मसल टू प्रोनेटर टीरीज इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. It also originated from two head, humeral head and ulnar head. Humeral head कहाँ से आएगा? Medial Common epicondyle. flexor origin. Common flexor origin से आएगा. And ulnar head from olecranon and posterior border of ulna. And it inserted on ulnaris muscle है बेटा. ठीक है. अब हमने कहा है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और हमें ये चीज भी पता है कि ये अल्नर साइड पे है. अल्नर साइड आपकी मीडियल साइड होती है. तो अब अल्नर साइड पे कार्पल बोन्स कौन सी हैं हमारे पास? Pisiform और hamate. Pisiform and hucophamate and base of the fifth metacarpal, right? तो इसने इंसर्ट भी मीडियल साइड पे ही होना है. मीडियल कार्पल और मीडियल मेटाकार्पल पे ही इंसर्ट होता है जाके. जो रेडियल मसल है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस वो पिसिफॉर्म और हुकॉफहेमेट पे आके इंसर्ट नहीं होगा. ठीक है, वो लैटरल कार्पल बोन्स पे ही इंसर्ट होगा और अल्नारिस मीडियल कार्पल बोन्स पे इंसर्ट होगा. ये एक कॉमन सेंस है. तो ये चीजें याद रखा करें आप. It get inserted in the pisiform and hucophamate and base of the fifth metacarpal because it is flexor carpi ulnaris. And what are the action of flexor carpi ulnaris? First year. Flexion at elbow. And adduction at wrist joint. Oh, at sorry. wrist joint. ठीक है. हम फोर आर्म कर रहे हैं तो फोर आर्म रिस्ट पे एक्ट करेगा, राइट? जो Yes, आर्म ma'am. है वो एल्बो पे एक्ट करेगा. ये चीजें कंफ्यूज मत किया करो. फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ हैंड. अल्नारिस मसल है तो बेटा वो एडक्शन ही करवाएगा. अल्नारिस कभी भी एबडक्शन ही करवा सकता. बिल्कुल इसी तरह जैसे रेडियालिस एबडक्शन करवाएगा, एडक्शन वो नहीं करवा सकता क्योंकि इनकी अटैचमेंट्स ऐसी हैं. नर्व सप्लाई क्या है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की? Ulnar nerve. अल्नर नर्व. अल्नारिस है तो उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी बेटे. And this is the testing of the flexor carpi ulnaris.
अब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को टेस्ट करना है ना, तो अपने हाथों पे इसको टेस्ट करो. Posterior of forearm and hand on the flat table, and then is asked to flex the wrist against resistance. और fifth digit is abducted. अपनी fifth digit जो आपकी little digit है बेटा, उसको abduct करो जैसा ये पिक्चर में हुई है, away from the middle finger. तो जो टेंडन आपको रिस्ट पे प्रोमिनेंट होती नजर आती है वो आपकी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की टेंडन होती है. फील हुआ है किसी को? नो मैम. No, ma'am. जो यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है वो किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे किया है? Yes, it can be palpated. कैसे किया है Yes. बेटा, कौन बताएगा? मैम पल्पेट हो रहा है. अपने फोरआर्म और हैंड को किसी फ्लैट टेबल पे या अपने बेड पे, जिस पे तुम लोग इस वक्त लेट के लेक्चर सुन रहे हो, उस पे रखो. ठीक है. और अपनी रिस्ट को अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्लेक्स करवाओ. अपने दूसरे हाथ को उस पे रेजिस्ट करवाओ और उसको फ्लेक्शन करवाओ. अल्नर साइड पे जो टेंडन तुम लोगों को फील होगा वो तुम लोगों का फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन है. यस मैम, फील हो रहा है. ठीक है, ये आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का है. या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी फिफ्थ डिजिट को एबडक्ट करवाओ, तब भी जो अल्नर साइड पे टेंडन फील होता है बहुत अच्छा फील होता है बेटे, वो आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन है. यस मैम. चलिए, दैट्स गुड, जिसको हो गया है. नेक्स्ट है palmaris longus मसल. बेटा palmaris longus मसल इज अ स्मॉल फ्यूजिफॉर्म मसल. फ्यूजिफॉर्म बेटा शेप होती है. यहाँ पे जितने मसल्स हैं वो तमाम फ्यूजिफॉर्म शेप में प्रेजेंट है आपके इंटीरियर फोरआर्म में. एंड इट इज एब्सेंट इन 14% ऑफ पीपल. मतलब जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में palmaris longus मसल प्रेजेंट हो. ये 14% पॉपुलेशन में एब्सेंट भी हो सकता है. और palmaris longus मसल की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट हैज वेरी स्मॉल बेली एंड इट हैज अ लॉन्ग टेंडन. ये डायग्राम में नजर आ रहा है मसल. Yes, ma'am. इसका स्मॉल बेली है, ठीक है, मतलब स्मॉल फ्लैश है मसल का, लेकिन इसका टेंडन लॉन्ग है, इसीलिए इसको palmaris longus मसल कहा जाता है. It originated from the common flexor region, inserted on the distal half of flexor retinaculum and apex of palmar epineurosis. I guess आपको flexor retinaculum and palmar epineurosis सब previous lectures में डिटेल में करवा दिया गया है. तो ये apex of Yes, ma'am. palmar epineurosis पे insert होता है. That's why its name is palmaris longus muscle. And actions, it causes flexion of the wrist and it tightens the palmar epineurosis. Obviously, if it's get inserted on the apex of palmar epineurosis, ये उसको tighten करेगा, tightens the palmar epineurosis. And it's nerve supply from the median nerve. And this is the testing of palmaris longus muscle. Wrist is flexed and pads of the little finger and thumb are tightly pinched together. If present and acting normally, the tendon can be easily seen. बेटा इसको अपने हाथों पे करके देखो, तुम लोगों को palmaris longus की टेंडन फील होती है? शाबाश. Yes, मैम हो गया. Yes, ma'am. मैम इधर तो दो टेंडन नजर आ रहे हैं. दो टेंडन क्यों नजर आ रहे हैं बेटा? जो आपका मिड में है ना, वो आपका palmaris longus है. अपने फिंगर, अपने लिटिल फिंगर और थंब को जरा जोर से पिंच करो और अपनी रिस्ट फ्लेक्स करवाओ. फिर Yes, ma'am. हो गया. हो गया है. इसका मतलब है कि बेटा आप में प्रेजेंट है. आप वो 14% पीपल नहीं है जिसमें एब्सेंट होता है. दूसरे हाथ में देखो जिसमें एब्सेंट है, ठीक है. तो जिनमें ये प्रेजेंट होगा ये उसी में टेस्ट पॉजिटिव आएगा. जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा उनमें ये टेंडन पेल्पेट नहीं होगा आपको. palmaris longus का टेंडन बेटा बहुत प्यारा नजर आता है. मैम ऐसे भी हो सकता है कि एक हाथ में आए और एक हाथ में ना आए. हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटे. Yes, ma'am. ऐसे आ रहा है, एक में आ रहा है, एक में नहीं है. बस ठीक है.
Clinical is the palmaris longus tendon is used for the tendon grafting in rupture. But as I told you earlier, it has a long tendon and a very small belly. So इसकी जो tendon है वो tendon grafting procedures में use होती है. अब हाँ जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम, अभी पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट वाली आ रही है। हमें नजर आ रही है। तो बेटा अभी इसी पे है। आपको क्लिनिकल बता रही हूँ कि पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन जो है वो टेंडन ग्राफ्टिंग में यूज होता है। अब ये टेंडन ग्राफ्टिंग टर्म से कोई कुछ चीज समझ आती है आपको? कोई आइडिया टेंडन ग्राफ्टिंग क्या है? नो मैम। बेटा टेंडन ma'am. ग्राफ्टिंग अभी आप लोगों ने जॉइंट्स किए हैं ना? यस मैम। जॉइंट्स किए हैं, वहां पे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। मसल्स की टेंडन्स होती हैं जो जाके आपके जॉइंट्स में इंसर्ट हो रही होती हैं। जैसे रोटेटर कफ था, उस पे आपके 4 मसल्स थे जो शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उन मसल्स की टेंडन्स होती हैं। इसी तरह नी जॉइंट पे भी। तो बेटा अगर कोई टेंडन किसी मसल की या फिर किसी जॉइंट में अगर कोई टेंडन या लिगामेंट आपका रप्चर हो जाता है तो उसके लिए आप पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन लेते हैं और उसको ग्राफ्ट कर देते हैं उस इंजर्ड जगह पे या उस टियर जगह पे। तो बेसिकली ये होती है टेंडन ग्राफ्टिंग कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई टेंडन रप्चर हो गया है या कोई जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रही है लिगामेंट रप्चर की वजह से, तो आप इस मसल की टेंडन को यूज करते हैं फॉर द रिपेयर। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा लगा दिस इज टेंडन ग्राफ्टिंग। Next we have flexor carpi radialis muscle, originated from common flexor region, insert on the base of second metacarpal bone. Right? Second metacarpal bone कौन सी है? ये medial side पे होती है, radial side पे होती है? रेडियल साइड। Radial side. ठीक है। Action, it causes flexion and abduction of wrist. मैंने पहले भी ये चीज रिपीट किया बेटा कि रेडियलिस एब्डक्शन करवाता है, अल्नारिस एडक्शन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाइज फ्रॉम द मीडियन नर्व। अब इस मसल को टेस्ट कैसे करेंगे? टू टेस्ट मसल रिस्ट इज फ्लेक्स्ड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो बेटा वो जो कह रहे थे ना कि 2 टेंडन्स फील हो रही हैं, तो बेटा पाल्मेरिस लॉन्गस के जो लैटरल टेंडन है ना वो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन है आपका। ठीक है। उसके जो लैटरल टेंडन है वो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन होता है आपके, और उसके जो मीडियल टेंडन आता है वो आपके फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का आता है। राइट? प्रोनेटर टीरिस मसल नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर में कौन सा मसल प्रेजेंट था? FDS। Flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis. digitorum superficialis. So it's a large muscle. It also originated from 2 heads, in humero-ulnar head and the radial head. Humero-ulnar head from the common flexor origin and from the coronoid process of ulna, while the radial head from the anterior aspect of the radius. ये देखो जो इसकी proximal attachment आ रही है बेटा मसल की, ह्यूमरस से भी आ रही है, अल्ना से भी आ रही है और रेडियल से भी आ रही है। So it has attachment on all 3 bones in the elbow region: humerus, ulna and radius. All three. And it inserted on the shafts of middle phalanges of the medial 4 digits. ये चीज याद रखें बेटा, ये चीज अभी याद कर लें। आप लोग वाइवा में नहीं बताते हैं कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का इंसर्जन और इसका एक्शन क्या है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आप लोगों को डिफरेंशिएट करनी ये चीज नहीं आ रही थी। सुपरफिशियालिस इंसर्ट होता है shaft of the middle phalanges of the medial 4 digits. Medial 4 digits mean little finger, ring finger, middle finger और index finger. ये है आपकी medial 4 digits और ये middle phalanges पे इंसर्ट होता है, not on the distal phalanges. And it causes, and what are the actions of flexor digitorum superficialis? कौन बताएगा?
Flexion of middle phalanges. At Proximal क्वेश्चन रिपीट interphalangeal करते हैं. Proximal Beta- interphalangeal joint. एग्जैक्टली प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे आपकी फ्लेक्शन करवाता है एंड फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल फेलेंजेस एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इस चीज का आइडिया है या कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डेवलप किया है लेक्चर से और बुक्स खोल के कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स क्या है और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स क्या है. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स क्या होते हैं? जो मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस के दरमियान आता है. एग्जैक्टली ठीक है. तो जब हम फिस्ट बनाते हैं, अब जरा अपनी फिस्ट बनाओ और मुझे बताओ कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन है कि एक्सटेंशन है? फ्लैक्शन. फ्लेक्शन एग्जैक्टली ठीक है. और आपकी जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उस पे क्या है? फ्लैक्शन ही है. उस पे भी फ्लेक्शन ही है. ठीक है. तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स जो कि मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस के दरमियान बनता है. प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो आपकी प्रॉक्सिमल फैलिंक्स और मिडल phalanx. मिडिल फैलिंक्स के phalanx. बीच बनता है. ठीक है. ये होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट प्लस रिस्ट फ्लेक्शन करवाता है ये. Nerve supplies from the median nerve. Superficialis has single nerve supply which is from the median nerve. And this is the testing of superficialis. बेटा अब superficialis की 4 टेंडन्स हैं जो आपकी medial 4 digits पे जाके इंसर्ट हो रही होती हैं. ठीक है. तो आपने जब superficialis किसी भी आप फिंगर की या डिजिट की superficialis टेंडन को आपने टेस्ट करना है तो आपने फ्लेक्शन करवानी होती है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे, जबकि बाकी की जो फिंगर्स होती हैं उनको आप एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रखते हैं टू डीएक्टिवेट द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. इस टर्म्स इस चीज से क्या समझ आया? कुछ समझ आया क्या कहा है मैंने? मैम प्रोफंडस डिस्टल Yes, फेलिंग्स पे जाकर लगता है. एग्जैक्टली इस वजह से तो उसको वो फ्लेक्शन करवाता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे. ठीक है. डिजिटोरम. जबकि सुपरफिशियालिस ने सिर्फ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे आपकी फ्लेक्शन करवानी है. तो आपने अगर किसी भी डिजिट में सुपरफिशियालिस को टेस्ट करना है ना तो आप उस फिंगर को जस्ट फ्लेक्स करोगे जैसे इसने रिंग फिंगर फ्लेक्स की हुई है. ठीक है. ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन हुई हुई है, जबकि उसने बाकी फिंगर्स जो है उस हाथ की उसने स्ट्रेट हाथ रख के उनको एक्सटेंडेड ही रखा हुआ है. क्यों एक्सटेंडेड रखा हुआ है? टू डीएक्टिवेट द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन्स. यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस मैम. ठीक है. आपने how can we deactivate the flexor digitorum profundus tendons while testing the flexor digitorum superficialis? अब इसका आंसर क्या होगा अगर कोई ये सवाल पूछे तो? एक फिंगर को फ्लेक्स कर लें, बाकी 3 को एक्सटेंड कर लें. एग्जैक्टली. आपने बाकी फिंगर्स एक्सटेंडेड रखनी है टू डीएक्टिवेट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. गुड. ये चीज याद रखना. नेक्स्ट वी डू द मसल्स ऑफ द डीप लेयर. We have flexor digitorum profundus. It has 2 parts, medial and the lateral part. Origin है from proximal 3/4 of the medial and interior aspect of the ulna and from the interosseous membrane. While it get inserted on the bases of the distal phalanges of the medial 4 digits. ठीक है. Superficialis insert हुआ था middle phalanx की shafts पे, right? प्रोफंडस इंसर्ट हुआ है डिस्टल फेलेंजेस की बेस पे. इसका एक्शन है फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड रिस्ट. मतलब ये हर उस जॉइंट की फ्लेक्शन में असिस्ट करता है जहां से इसकी टेंडन पास करती है. लेकिन जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हम फ्लेक्शन करवाते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे टू चेक द एक्शन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल.
इसीलिए जब हमने सुपरफिशियालिस में फिंगर फ्लेक्स करवाई है प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे, तो हमने डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स जो बाकी फिंगर्स का है या मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स उनको एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा है ताकि प्रोफंडस डीएक्टिवेट हो जाए हमारा। And what is the nerve supply of the flexor digitorum profundus? 2 nerve supply. Exactly. So name the muscle which has dual nerve supply in interior forearm. So which muscle is this? FDP. हाँ, abbreviation यूज नहीं करने बेटे, पूरा नाम बोले। हाँ जी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। आपने अपने लेवल पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एब्रिविएशंस नहीं याद करने होते बेटा, आप अपनी आसानी के लिए कर लो, लेकिन अगर आपने वाइवा देना है या पेपर में लिखना है तो आप पूरा लिखोगे। So medial part by the ulnar nerve and the lateral part by the interior introitious nerve. Interior introitious nerve किसकी ब्रांच है? रेडियल हाँ, एग्जैक्टली, वाइवा में भी यही हो रहा था कि इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है? रेडियल नर्व की, अल्नर नर्व की या कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच है ना? मीडियन नर्व। मैम अल्नर नर्व की है। इंटीरियर मेरे ख्याल में मीडियन नर्व की और पोस्टीरियर बेटा रेडियल। आपने ये इसीलिए लेक्चर्स हमने दोबारा रखे हैं क्योंकि आप लोगों ने यहाँ की नर्व सप्लाई का वाइवा में जो हाल किया है ना, आपको नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई में डिफरेंशिएट करना नहीं आया बेटा। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इंटीरियर फोरआर्म में आपके पास 2 नर्व्स हैं, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व 1.5 मसल को सप्लाई करती है, बाकी तमाम मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब अल्नर नर्व का 1.5 मसल कौन सा है? 1.5 मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक हो गया, ये हो गया 1.5 muscle which is supplied by the ulnar nerve, while all the remaining muscles in the interior compartment are supplied by the median nerve, either directly or by its interior introitious nerve branch. अब ये चीज यही याद कर लें कि इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। एग्जैक्टली, वो जो अल्नर जो आप लोग बात करते हैं बेटा, वो इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की बात करते हो, वो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर, इंटीरियरली जो स्ट्रक्चर रखे होते हैं न्यूरोवास्कुलर, वो इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी होती है, इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है, इंटीरियर इंट्रोशियस वेन होती है। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच है, इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी किसकी ब्रांच है? अल्नर आर्टरी। ठीक है, अल्नर आर्टरी। एग्जैक्टली। अब ये चीज कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की फर्दर ब्रांच नहीं है बेटा, वो बेशक कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी कहाँ से निकलती है मैम? अल्नर आर्टरी से निकलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी में फर्क है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि कॉमन इंट्रोशियस की ब्रांच है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको तो याद करवाओ ना बेटा। अब ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी कि इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। जी मैम। नेक्स्ट, दिस इज द टेस्टिंग ऑफ द प्रोफंडस। अब मुझे शाबाश जल्दी से बताओ कि हम प्रोफंडस को कैसे टेस्ट करेंगे? Flexion at the distal interphalangeal joint against resistance. एग्जैक्टली। ठीक है, जब आपको मसल्स की इंसर्जन्स आती है ना और उनका एक्शन आता है तो टेस्टिंग याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब
एक्शन आता है तो अब वही एक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवा के मसल पैल्पेबल करवा लेते हैं और यही हर मसल का एक्शन हो जाता है। अच्छा, अब हमने कहा है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम की ड्यूल सप्लाई है, तो अगर आप डिस्टल इंटरफिल अगर ओके अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इफ यू वांट टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द मीडियन नर्व, सो आप किन फिंगर्स पे फ्लेक्शन करवाएंगे डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे? मैं लेटरल 3 Second and third. एग्जैक्टली, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, गुड। और अगर आपने अल्नर नर्व की इंटेग्रिटी चेक करनी है फिर Fourth and fifth. डिजिटी मिनिमी एनुलर डिजिटी मिनिमी नहीं बेटे, डिजिटी मिनिमी क्या है? मसल Extensor हाँ। muscle. एग्जैक्टली, तो यहाँ कहाँ से आ गया? जो चीज याद की है ना वो हर जगह नहीं बोल देते, जो जितना पूछा जाए उतना ही बताना होता है। तो कौन Yes, सा ma'am. होगा अगर आपने अल्नर नर्व की चेक करनी है इंटेग्रिटी? Little finger. हाँ, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, रिंग फिंगर रिंग और लिटिल दोनों। अब ये इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस में बेटे? नो मैम। मैम आपने बोला है No, कि ma'am. अगर किसी मसल का हमने बताना है, टेस्ट बताना है, तो हम सिंपली हाँ। उसका एक्शन बता के तो उसको रेजिस्टेंस के अपोजिट करके बता दें, तो वाइवा में हम हाँ। ऐसे ही कर लें। हाँ जी, ये ऐसे ही टेस्ट होते हैं। अभी जितने भी टेस्ट करवाए हैं सब एक्शंस ही तो हैं। प्रोनेटर कैसे टेस्ट किया तुमने? प्रोनेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही किया है ना? यस मैम। बाइसेप कैसे टेस्ट करते हो? फ्लेक्शन फ्लेक्शन करवा के देखते हैं। हाँ, Flexion फ्लेक्शन करवाते करवा हैं के resistance देखते हो। के और बाइसेप का एक्शन भी क्या है? बाइसेप का क्या एक्शन होता है? फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन Flexion ही होता है। Exactly. Flexion and supination. हाँ, तो ऐसे ही करवाया ना। बाइसेप तुमने प्रोमिनेंट किया तो तुमने फ्लेक्शन ही करवाई है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगेंस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप स्लो करवाते हो, और अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवाओगे तो मसल ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओके मैम, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आ गया बेटा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ऑब्वियसली अब हमने फ्लेक्शन करवा ली है डिजिट्स की, अब हमने फ्लेक्शन करवानी है थंब की, क्योंकि हमारे पास थंब रह गया, उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो अब इसका ओरिजिन हम है अपर 3/4 ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब बेटा पॉलिसिस लॉन्गस है, तो अब मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन आ सकता है? नो मैम। ठीक है, इसने रेडियल साइड पे होना है ना, तो फिर रेडियस से ही ओरिजिन करेगा, रेडियस से और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से। इंसर्ट कहाँ होगा? बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब, राइट। एक्शन क्या हो गया इसका? फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स। तो थंब की फ्लेक्शन प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे, बोथ रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, थंब पे चाहे आप प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे फ्लेक्शन करवा लें या डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे आप फ्लेक्शन करवाएं, मसल इन्वॉल्व जो है वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई इज बाय फ्रॉम, इंटरफ्लेंजल जॉइंट नहीं होगा हाँ जी, मैम, इसका दो इंटरफ्लेंजल जॉइंट होंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, या एक इंटरफ्लेंजल जॉइंट होगा? क्योंकि इसके तो दो फेलेंक्स हैं। बेटा इसके दो फेलिंग्स हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि एक तो हो गया मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट, यस मैम। ठीक है, वो किसके दरमियान बन रहा है? मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स के दरमियान। ठीक है, और जो इसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल के दरमियान बन रहा है वो मैम प्रॉक्सिमल फेलेंक्स इंटरफ्लेंजल जॉइंट। हाँ, तो दो जॉइंट्स हो नहीं गए हैं इसके। मैम इसमें तो प्रॉक्सिमल डिस्टल का कोई सीन होगा कि ये इसको सिर्फ इंटरफ्लेंजियल ही कहेंगे? मैम यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल एंड इंटरफ्लेंजल। मैम ने लिखा हुआ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फेलेंजियल जॉइंट नहीं लिखा हुआ।
हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। ज्वाइंट तो बेटा जब उसमें मिडल है ही नहीं तो उसका एक ही बनेगा ना ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल और ma'am, मैं डिस्टल यही के दरमियान, और मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से देखते होते हैं। फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब लिखा हुआ है, ठीक है। नर्व सप्लाई, इंट्रोशियस नर्व। ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा है, जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के मसल थे उसमें अल्नारिस को सप्लाई किया था अल्नर नर्व ने, बाकी सबकी सप्लाई आई थी मीडियन नर्व से, ठीक है। सुपरफिशियलिस को भी सप्लाई किया मीडियन नर्व ने, जबकि डीप लेयर के मसल्स में इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच होती है आपकी मीडियन नर्व की, क्योंकि ये डीप मसल्स हैं प्रेजेंट नियर टू द बोन, और बोन के साथ ही आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर आपका इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है। तो इसकी नर्व सप्लाई, डीप लेयर ऑफ मसल्स की जो सप्लाई है वो आपकी इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से आती है। एंड दिस इज द टेस्टिंग ऑफ फ्लेक्सर pollicis longus. Proximal phalanx of thumb is held and the distal phalanx is flexed against resistance. तो ये है फ्लेक्सर pollicis longus. तो थंब पे जहां पे भी फैलेंक्स फ्लेक्स्ड करवाना है बेटा, वो आपका फ्लेक्सर pollicis longus टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है pronator quadratus. Pronator quadratus is a small muscle origins from the distal quarter of anterior surface of ulna and insertion on the distal quarter of anterior surface of radius. So from ulna to radius, in the distal parts of radius and ulna bone, this muscle is present. Action, pronator quadratus का action क्या है बेटा? Pronation of forearm. Pronation of forearm. और इसके अलावा और कौन सा मसल है जो pronation of forearm करता है? Pronator teres. Exactly, ठीक है। तो proximal part of forearm में कौन सा pronator muscle present है? Pronator teres. Exactly, and distal part of anterior forearm में pronator quadratus. Exactly, ठीक है। It also supplied by the interior introitious nerve. अब यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई बेटा तो पूछ लो। मैम जी, अगर नर्व इंजरी ना हो लेकिन मसल वीक हो तो वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्शन देगा अपना? बेटा मसल वीक भी होगा तो एक्शन आएगा। तो जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ पैरालिसिस के लिए होता है? बेटा आप नॉर्मल टेस्टिंग भी करते हैं ना। देखिए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई चीज गिर गई है या कुछ हो गया है, या कह लो कि अच्छा चलो एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमारा आर्म या शोल्डर जो है वो अक्सर दीवार पे या दरवाजे पे लग जाता है ना चलते हुए, या कुछ हो जाता है तो फिर बाद में तुम्हें पेन होती है ना वहां पे। Yes. और फिर तुम्हें होता भी है कि मेरा हाथ, मेरी ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो रही, या पेनफुल है, या मुझे ये वाली मूवमेंट नहीं हो रही। इस तरह की चीज होती है कि नहीं होती? जी होती है ना। तो बेटा यही होता है फिर। ओके। कंप्लीट पैरालिसिस आपकी नर्व इंजरी में आता है कि उसको कोई सप्लाई ही नहीं कर रहा। मसल टेस्टिंग बेसिकली है क्या? आप इनर्वेशन ही तो चेक कर रहे हो बेटा। मसल को इनर्वेशन आ रही है, उसको ब्लड सप्लाई आ रही है, तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है ना, तभी वो इंटैक्ट रहेगा। अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो मसल तो पैरालाइज हो जाएगा। स्ट्रोक के मरीजों में यही होता है ना, खुदा ना खास्ता, जो हम आम जुबान में कहते हैं कि फालिज हो गया है। जी ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपके मसल्स का एक्शन जाता है ना। क्यों जाता है? क्योंकि आपकी ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी जो नर्व सप्लाई होती है, जिस पार्ट का जाता है वहां उस हिस्से की नर्व सप्लाई मसल एक्शन खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो गई है या अपर लिम्ब की हो गई है, एक साइड, राइट हाफ ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। मतलब ये तो एक कॉमन
प्रैक्टिस है जो देखते हैं हम। मसल एक्शन करता है यस मैम। लेकिन वीक हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि हमारे मैम? पास टाइम है। एक सेकंड बेटा। मैम एक क्वेश्चन। बेटा ये है वो डायग्राम, ठीक है, ये है ब्लड सप्लाई कि ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होती है रेडियल में और अल्नर में, और अल्नर आर्टरी से निकलती है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी डिवाइड होती है इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी में जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी में जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। सो इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी से कोई लेना देना नहीं है। ब्लड सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है। अब ये चीज कंफ्यूज होगी? नो मैम। नो मैम। ओके, दैट्स गुड। मैम जी मैम हमसे कार्पल बोन्स की साइड डिटर्मिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी? बेटा जब आप इंशाल्लाह अपने कॉलेज कैंपस में आएंगे और फिर आप लोग बोन्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली कार्पल बोन्स की आइडेंटिफिकेशन ही ज़्यादातर पूछी जाती है, लेकिन जब आपको उनकी शेप वाइज उनकी आइडेंटिफिकेशन आती है, आपको फीचर्स पता होते हैं कि हुक ऑफ फेमेट मीडियल साइड पर प्रेजेंट है, उनकी सर्फेसेस पता होती हैं, तो उनकी जो साइड डिटर्मिनेशन है वो मुश्किल नहीं होती। वो आप 1 मिनट में बता देते हैं कि ये इस साइड की है, ये राइट साइड की है, और ये लेफ्ट साइड की है। जैसे ह्यूमरस और आपने स्कैपुला वगैरह की थी, तो जब आपको फीचर्स पता होते हैं तो फिर आप बता देते हो ना कि मैडम ये राइट की है, ये लेफ्ट की है। यस तो इसी तरह कार्पल बोन्स पे जब आप इंशाल्लाह करेंगे आके कैंपस में तो वो भी इजी है। नहीं तो बेसिकली अगर नहीं होती हैं तो एटलीस्ट उनकी शेप्स पता होनी चाहिए। ये तो पता होना कि ये ल्यूनेट है और ये कैपिटेट है। यस मैम। ओके, मैम आपका अटेंडेंस लिंक शेयर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी बेटे। एंटीरियर कंपार्टमेंट के लेयर वाइज इनर्वेशन जरा दोबारा रिपीट कर दें कि सुपरफिशियल, डीप और इंटरमीडिएट। बेटा सुपरफिशियल आपकी तमाम नर्व सप्लाई एक्सेप्ट अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस आपको सप्लाई करती हैं मीडियन नर्व, ठीक है। इंटरमीडिएट लेयर में आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल है, उसकी भी नर्व सप्लाई आती है मीडियन नर्व से। डीप में आपके पास प्रोफंडस है, पॉलिसिस लॉन्गस है और प्रोनेटो क्वाड्रेटस है। प्रोफंडस की ड्यूल सप्लाई है, उसकी इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से आती है और अल्नर नर्व से आती है, जबकि जो बाकी रिमेनिंग मसल है प्रोनेटो क्वाड्रेटस एंड पॉलिसिस लॉन्गस वो आपकी इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से आती है जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच है। राइट मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम हमने इस सब स्टेज के लिए एल्बो जॉइंट प्रिपेयर करना है? बेटा एल्बो जॉइंट आपके सिलेबस में है मैम, वो बताया है ना कि फोर आर्म और हैंड होगा, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन है कि एल्बो जॉइंट इंक्लूडेड होगा या नहीं। अच्छा चलें ये कंफर्म कर देते हैं, आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। जी बेटा। जो टॉपिक्स है उनके अंदर जो मेंशन है वो सिर्फ कार्पल बोन्स हैं, तो मैम जब हैंड है तो मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस भी हमें आनी चाहिए प्रॉपर्ली। जी बेटा, आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आपने अब जो अपनी सबस्टेज तैयार करनी है, ऑब्वियसली सबस्टेज में तो आप यही सिलेबस रखेंगे जो आपकी थर्ड सबस्टेज का है, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर थर्ड सबस्टेज आपका अपर लिम्ब कंप्लीट है। जो आपके 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं जैसे रेडियोलॉजी है या सरफेस मार्किंग है, उनके लेक्चर्स भी आपके नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। तो आपने हर चीज तैयार करनी है, कंप्लीट अपर लिम्ब। सब आपकी जो स्टेज है, स्टेज के लिए आपका कंप्लीट अपर लिम्ब है, उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं। मैम जी बेटा। मैम थोड़ी एक्सटेंड कर दें, स्टेज थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ईद के फौरन ही बाद है, इतनी भी क्या जल्दी है। एक तो हमारी 4th सबस्टेज डिसॉल्व कर दी है और थर्ड में उसका सिलेबस ये बहुत। मैम ये तो ज्यादती है हमारे साथ, अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए।
Yes, ma'am. कब है स्टेज? मैम ईद के फौरन बाद तीसरे दिन है तो बेटा ठीक नहीं है। अगर पहले रख देते तब भी आपने यही कहना था कि हमारी ईद खराब कर दी है, बाद में रख मैम दिया। थर्ड वीक में मैम सब स्टेज पहले है, स्टेज ईद के फौरन बाद है। स्टेज आने के बाद पहली ईद है हमारी। हर बेटा लिहाज से क्या- खराब है मैम। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? आप मैम स्टेज थोड़ी एक्सटेंड कर दें एक हफ्ता या तक 1-2 हफ्ते बाद चाहिए। बेटा ये यस मैम मैम, हमने साइमा कुछ से बात तैयारी भी करनी बेटा ये मैम साइमा से बात करनी पड़ेगी। वैसे तो स्केड्यूल बन गया है, वो भी फॉलो होगा, लेकिन अगर आपको इश्यूज हैं तो आप डॉक्टर साइमा से बात कर सकते हैं। यस मैम, इतना ज्यादा बट इन अ ग्रुप। यस अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। ओके फर्स्ट ईयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Office, ma'am.